Okay. Good afternoon, students. As we are discussing about the economics, in previous session, we have discussed many of the points from the first chapter as we are dealing with the introduction of our statistics for economics subject. So here, how exactly statistics is needed for economics we have seen in the previous session, and we have discussed what is economics. Then we came across with the statistics part now. Yes, what is economics? Generally, we came to know in general terms. Then we saw many of the definitions provided by the economists. Then in the continuation, we are having the further concept. So, are you able to see this screen? Yes, sir. Yes. Soon after, in the previous session, what we are having the discussion, we came across many of the concepts, such like definitions provided by the economist. We saw the definition provided by the Adam Smith, then Alfred Marshall, then Robin Lionel, and nextly the Samuelsons. These are the definitions given by the economists in their studies. What they have studied, what they have made the research, how much they have developed the economy that we call here as a modern economy terms, how they have developed, that we came across. Then specifically we saw in detail what the Alfred Marshall's definition means. Then after these all the things, one thing we are going to know is scarcity. See, as and when we saw the definitions, the word scarcity was in between, right? Scarce resources in the economics. What we discussed here, what is economics in part? In that part, what we have discussed, it is a study of people how allocate scarce resources or scarce resources itself, how we allocate in the production, distribution, and consumption. Now, most probably, you are going to see here our wants are more in the slide, and our expectations most probably are more than what we are going to get. See, in this image, you are going to see land, labor, capital, then enterprises, limited resources are, and time is there. Yes, in this image, you are going to experience it. Everything you can see there in the image. It has been told land, labor, capital, enterprise, entrepreneurship is limited, but our wants on the other side of the image, you are going to see virtually unlimited human wants. मतलब यहाँ पर क्या है, आपको जितना चाहिए ना, वो काउंट करने लायक नहीं है. हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सभी चाहिए. अगर सभी चाहिए, तो अगर आपके हिसाब से आप देखोगे, नोटिस करोगे, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है. ठीक है, तो हमें अगर इस इमेज से देख सकते हो, फूड, क्लोथ, शेल्टर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स थिंग्स है. उसके बाद सिक्योरिटी हो गया, कंफर्ट, मेडिकल फैसिलिटी, ज्वेलरी, अफेक्शन, देन ट्रांसपोर्टेशन, गुड हेल्थ, चिल्ड्रन, वैरायटी ऑफ डाइट्स, knowledge, convenience, recognition, travel, wisdom, recreation, control, respect, entertainment, and love also. These are the points where you want it with no limits. ये सभी आपको जैसे कि हर मोड पे, मतलब कभी मन चाहे तभी मिले. लेकिन ये स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट जो है हमारे लाइफ में कभी अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाए. ठीक है, अगर आप देखोगे, आपको हर बात के लिए कहीं ना कहीं लिमिट रहता ही है. अगर आपको कुछ चाहिए तो हाँ, इस बजट में लो. अगर आप पेरेंट्स से आप खुद के लिए ड्रेस मांगते हो, क्लोथ्स, ड्रेस मांगते हो, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते मुझे 10,000 वाला एक ही ड्रेस चाहिए. नहीं, 10,000 में 10 से 20 ड्रेस आ सकते हैं जो कि आप सालों भर यूज कर सकते हो. ठीक है, मतलब क्या है, उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना. स्केर्सिटी का मतलब क्या है? प्रॉपरली यूटिलाइज करना. यूटिलाइजेशन मतलब सेटिस्फेक्शन लेना प्रॉपर वे में. पैसे है इसीलिए आप खर्च नहीं करने का, आप कर नहीं पाओगे. आपको कैसे खर्च करना है? एग्जैक्टली जहां पर जो पैसा जितना लगता है उतना ही खर्च करो.
ठीक है, उसे बोलते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो यहाँ पर आपको देख पाओगे डेफिनेशन है यहाँ पर, स्केर्सिटी रेफर्स टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये हो गए अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सही है, तो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे वो प्रॉब्लम है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किसके लिए, टू whom यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, whom टू प्रोड्यूस हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस, आप कैसे प्रोडक्शन कर रहे हो, आप एम्प्लॉय लेबर ओरिएंटेड कर रहे हो या कैपिटल ओरिएंटेशन, आप किस बेसिस के ऊपर आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो भी मायने रखता है। सो स्केर्सिटी रेफर्स टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, the gap between limited, the gap between limited, that is scarce resources and theoretically limitless wants। मतलब ये जो गैप है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स में, वो हम लोग उसे, उस गैप को हम क्या कहलाते हैं, स्केर्सिटी। मतलब the gap between the scarce resources and unlimited wants, we call it as a, what we call here, scarcity। now one few more concept I will tell you। scarcity मतलब क्या है, यहाँ पर एग्जांपल में आप देख पाओगे। सी लॉन्ग क्यूज एट रेलवे बुकिंग काउंटर्स, आप देख पाते हो, हमें टिकट चाहिए होता है, आपको यहाँ से कहीं बाहर जाना है, जैसे यहाँ से दिल्ली विजिट करना है, आप ट्रेन बुकिंग करने जाते हो, लाइन, बड़ी सी लाइन देखते हो ट्रेन बुकिंग के लिए, तो वहाँ से लाइन लगाते हो। ठीक है, तो वो क्या है, स्केयर रिसोर्सेस, मतलब वो टिकट भी कम से कम रहेंगे ना, जैसे कि 2 बोगी ट्रेन के एसी रहते हैं, 12 बोगी स्लीपर्स के रहते हैं, उसमें सिर्फ उतने ही लोग बैठे जाते हैं। और जनरल जो वार्ड, जनरल जो डिब्बा रहता है रेलवे का, उसमें कम से कम 150 का सीट अरेंजमेंट रहता है, वो वहाँ पर बैठते हैं 400 500 लोग, तो वो ठीक नहीं है। जब रिजर्वेशन होता है उनके लॉन्ग क्यूज फेस करने पड़ते हैं, और बसेस में आपको सीट नहीं मिलती, क्राउडेड बसेस मिलते हैं, मतलब 55 बैठने चाहिए लेकिन 120 तक सभी बस में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट कितना होता है, 55, लेकिन 100 से भी ज्यादा भर के जाते हैं बसेस में, ये ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन्स, शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, रश इन टिकट्स टू वॉट अ न्यू फिल्म, अगर मूवी देखना है तो एडवांस बुकिंग कर लेते हो आप, हाँ कल का शो फ्राइडे है, कल आज बुकिंग करने के लिए जाएंगे, एडवांस बुकिंग भी होता है, या फिर ऑनलाइन बुकिंग होता है क्राउड से बाहर निकलने के लिए। नहीं तो अगर डायरेक्टली वहीं पर लेना है तो एक 50 लोग, मुझे पहले लाइन की सीट चाहिए कह नहीं सकते आप, 50 लोग आपके सामने खड़े रहते हैं। सही है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो कुछ है रिसोर्सेज अवेलेबल हमारे लिए बहुत ही कम है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद क्या पता चलता है, देखिए हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, वी कांट गेट समथिंग फॉर नथिंग, ये कॉन्सेप्ट कैसा आपको समझ में आता है, देखिए हाउ इट इज। वी कांट गेट समथिंग मतलब हमें कुछ चाहिए हो तो बिना कुछ दिए नहीं मिलता, सीधी बात है। वॉट वी कांट गेट समथिंग फॉर नथिंग मतलब कुछ चाहिए हो तो हमें कुछ बिना दे दे कुछ नहीं मिलता, ऐसा इसका मतलब है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे स्केर रिसोर्सेस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हमारे पास अलादीन के जैसा चिराग मिलता और उसमें क्या बोलते हैं उसे, अलादीन के साथ रहते जीनी होता, जो उसे चाहिए वो मिल जाए, मतलब जीनी, अलादीन आपने सीरियल भी देखा होगा, मूवी भी देखा होगा, वो डिमांड करता है मुझे महल चाहिए, वो जीनी आता है उसका महल बना के देता है। उसके बाद उसको रौनक चाहिए, मतलब पैसा वगैरह चाहिए, वो बोलने से जीनी आएगा, पट कर उसको जो चाहिए वो देगा। जब ऐसा हो जाए तो लाइफ क्या बन जाए सबकी, यस।
what will be the life of the people if we get that chance. Yes, if we get any of the, जैसे हम बता रहा हूं मैं, अगर हमें भी कुछ कलश या फिर ऐसा चिराग मिल जाए, if we get that chirag, so what will be our life? Whatever we demand, like just in 1 second it will be presented here. लेकिन ऐसा नहीं है. हमारी लाइफ कैसे है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा. If you want something, you have to give something. सही है. If you want to have food, you have to pay for it. Cloth, you have to pay for it. ये क्या है, अगर आपको कुछ चाहिए होगा, आप बिना कुछ देने दिए आप कुछ मिलेगा नहीं. ये होता है ये कॉन्सेप्ट स्केर्सिटी. क्यों हम लोग स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट डील कर रहे थे, देख रहे थे, इसी वजह से. लेट्स सी व्हाट इट इज. सी वी हैव अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज विद BCS. यस, हम देखते हैं हमारे अनलिमिटेड वांट्स है लेकिन लिमिटेड क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो उस वजह से क्या होता है, सभी BCS है. Scarcity refers to economic problems. हमें पता है scarcity is a economic problem here, basic economic problem. Had there been no scarcity, there would have been no economic problem. अगर scarcity ना होती, जो कुछ चाहिए आपको एक सेकेंड में ऐसे मिल जाए, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे आप डिमांड जैसे करते हो वैसे आपको मिल जाए, तो क्या हो जाए लाइफ आपकी. यस, व्हाट विल बी योर लाइफ, सो दैट जस्ट इन 1 second I want this. Just like a story of this Aladdin. जैसे हम स्टोरी अलादीन की डिसाइड करें ना, वैसे हो जाए तो सबकी लाइफ बन जाए. लेकिन यहाँ पर क्या होता क्या है, यहाँ पर हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ देना पड़ेगा. सो हियर वी आर सेइंग देयर हैड बीन नो स्केर्सिटी, देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अगर स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट ना होता तो कुछ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं होते. ठीक है. देन नेक्स्टली, बट इन रियलिटी वी फेस स्केर्सिटी एज things that satisfy our needs are limited. Also it has a alternative uses. मतलब क्या है, हमारे लाइफ में हमारे स्केर्सिटी है, जैसे जो कि हमें हमारी सेटिस्फेक्शन दिलाते हैं. आवर वांट्स, वांट्स क्या है, हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट थिंग्स जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सब भी हमारे वांट्स है. उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, आप जो मन आए वो बना के खा सकते हो. उसे राइस से किस प्रकार आप बिरयानी बना सकते हो, फ्राइड राइस बना सकते हो, वो अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो. एक ही फूड ग्रेन ही तो है, वो चावल है, लेकिन चावल में किस प्रकार अल्टरनेटिव उसके यूजेस करते हो, है कि नहीं. ये सभी होता है. देन एज पर द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स टू फुलफिल आवर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. मतलब हम लोग हमारे अनलिमिटेड वांट्स को ना फुलफिल नहीं करवाते या फिर कर नहीं पाते. ठीक है. क्यों, सभी रिसोर्सेज स्केयर होने की वजह से. स्केयर मतलब लिमिटेड होने की वजह से. स्केयर वर्ड जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, लिमिटेड मतलब कम होने की वजह से. देन नेक्स्टली, दस टू हैव समथिंग वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट. अगर हमको कुछ चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये आ गया हमारा अगला कॉन्सेप्ट. हम लोगों ने देखा कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर रखा है. लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रोडक्शन है, क्या कंजम्पशन है, हम लोग फिर से एक बार देखेंगे. सो व्हाट इट सेज, economics is often discussed in 3 parts: consumption, production and distribution. Consumption means what? Here we have to know how consumers decide, given his income and many alternative goods to choose from, what to buy when he knows the prices. मतलब क्या है, कंज्यूमर्स कैसे डिसाइड करता है, उसकी इनकम, जैसे कि उसकी इनकम अगर 20 रुपए है, उस 20 रुपए में आप क्या परचेस कर पाओगे, है कि नहीं. उसे उसके प्राइस बेसिस के ऊपर उसे डिसाइड करना रहता है. 20 रुपए में आपको क्या मिल सकता है. आप पूरा एक दिन में अगर 20 रुपए कमा रहे हो, तो उस 20 रुपए में आप पूरा दिन रह सकते हो क्या, उस कैसे
वो कंज्यूम करेगा वो पैसे, वो यहाँ पर उसे डिसाइड करना पड़ता है। यहाँ पर इस लाइन में आप देख सकते हो, वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स, हमें जानना है कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? हिज गिवन हिज इनकम, मतलब उसके इनकम के बेसिस पे डिसाइड करता है। मेनी अल्टरनेटिव गुड्स है, मतलब बहुत सारे गुड्स है। आप लोगों को राइस अगर खाना है तो आपको नॉर्मल राइस चाहिए या फिर बिरयानी राइस चाहिए, वो आपको डिपेंड करेगा। ठीक है, वो आपके इनकम बेसिस जो प्रोवाइडेड है इनकम आपकी, उस बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करोगे। ठीक है, व्हाट इज द पीपल, द पर्सन विल, द कंज्यूमर विल डिसाइड। देन फर्दर व्हाट टू बाय व्हेन ही नोज द प्राइसेस, वो क्या परचेस करे जब उसे प्राइसेस पता चले। उसको अगर प्राइसेस पता है, प्राइस अगर 5 रुपए को एक एप्पल मिल रहा है तो 20 रुपए में कितने मिलेंगे? 4 एप्पल मिलेंगे, है कि नहीं? वो उस बेसिस के ऊपर डिसाइड करेगा व्हाट टू परचेस व्हेन ही नो द प्राइसेस। सो दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ कंजम्पशन। सिर्फ हम लोग कंजम्पशन करना मतलब यूटिलाइज करना या फिर खाना उतना ही नहीं देख रहे हैं, हम लोग स्टडी ऑफ कंजम्पशन देख रहे हैं, जो कि एक कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है, उसके पास इनकम कितनी है, उस इनकम में वो कितना क्या कर सकता है, बाय कर सकता है, कौन से प्रोडक्ट बाय कर सकता है, और उसके ऊपर वो कैसे सेटिस्फाई हो सकता है। परचेस करने के बाद वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो वो कैसे, हम लोग इस स्टडी ऑफ कंजम्पशन के कॉन्सेप्ट से हम लोगों को पता चलेगा हाउ द पर्सन और द कंज्यूमर परचेजेस और सेटिस्फाई हिज वांट्स व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ हिज इनकम ही डिसाइड्स व्हाट टू बाय एट व्हाट प्राइस। ठीक है, उसे बोलते हैं स्टडी ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट दूसरा जो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या है देखेंगे। वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर सिमिलरली चूज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। अभी प्रोडक्शन बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करता है हम लोगों को क्या प्रोडक्शन करता है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, जो कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसमें क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन करना है आप जानोगे, उसके बाद कैसे प्रोडक्शन करना है वो भी जानना है। आप लेबर इंटेंसिव हो कि कैपिटल इंटेंसिव हो, आप दूसरे वर्कर्स की मदद ले रहे हो या फिर मशीनरी यूज कर रहे हो, वो डिसाइड करने को इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की स्टडी कैसे की जाती है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर सिमिलरली चूज व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, मतलब जब वो डिसाइड करता है क्या प्रोडक्शन करे और किसके लिए प्रोडक्शन करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट फाइनली हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ओके, इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पैसे देना, ये डिस्ट्रीब्यूट करना वो भी नहीं होता। यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, देखिए फाइनली वी वांट टू नो द नेशनल इनकम और द टोटल इनकम अराइजेस फ्रॉम व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जो हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर ही जीडीपी निकलता है। ठीक है, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमें पता चलता है ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नथिंग बट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओके, तो इसके ऊपर आपकी इनकम कितना होता है, नेशनल इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना होता है इस जीडीपी से आप देखोगे, देन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू वेजेस। अभी ये जो इनकम देख रहे हैं हम लोग, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किसे करते हैं? आपको पता है गवर्नमेंट के अंडर कितने लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको वेजेस मिलता है या फिर सैलरी मिलता है, सही है। इस जीडीपी की वजह से मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से जो टोटल इनकम या फिर नेशनल इनकम होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे, किस फॉर्म में किया जाता है? एक तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस रहेगा, वेजेस जो लेबर्स को देते हैं, या फिर सैलरी मंथली देते हैं वो सैलरी होता है, डेली बेसिस के ऊपर देते हैं उसे वेजेस कहते हैं। डेली payments what we do we call that as a wages, and monthly what we pay for the workers, that will be the salary. That is what we are seeing here. Then soon after that profit, when you get profit, what you pay them in
profit and interest will be what it is, where it is, yes, we have to aside income. See, out of